Good afternoon, students. Welcome to Adda 24/7, and my name is Udisha. And today morning I could not take the lecture because of the bad electricity conditions. I don't know when, at what moment do they start load shedding or whatever was the issue. I have no idea. I mean, what load? People are at home, maybe they're using a lot of electricity, but for some reason I could not take the session in the morning. So I'm so sorry for that. A lot of you were there in the morning. Up right now, not those many students are here, so I would request you guys to quickly go ahead and share the session. जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम शुरू कर दें अपनी आज की क्लास. यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ आ चुके हैं उन सबको हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, वेरी नाइस टू हैव यू ऑल. प्लीज गो अहेड, शेयर द सेशन. देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, और मेरे केस में मैं आपके लिए बोलूँगी योर सेल्फ. आप अपने बारे में कैसे बात कर सकते हैं इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. ठीक है, ये हो जाएगा डे 2 ऑफ स्पोकन इंग्लिश. अच्छा, जितने भी लोगों को मेरा प्रीवियस होमवर्क का शीट का लिंक नहीं मिला था, आज का लिंक आप लोगों को सेशन खत्म होने के 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन इंग्लिश. Previously in the not previously in the previous lecture there were a few things that I told you guys to do. How many of you did that? How many of you did those things? I gave you some homework, as in I gave you 5 sentences to write. About 100 of you probably did the homework, but not a lot of you, right? So today's class I will be waiting for all your answers, all your comments in the comment section, okay? Whatever homework. Next thing, I told you guys to start mimicking the person that you like, whose way of speaking you like. So mimic as in copy. Pick small sentences and copy the person. If you copy it well, you're going to learn how to speak in English very quickly. Third very important thing is, if you're going to attend the lecture and if you're going to make comments or write comments in Hindi, trust me, the purpose will be beaten. You are not going to learn English. So tutti frutti, achhi buri, jaisi bhi, you are only requested to write your comments in English. All right, write small sentences, but please write only in English. Next thing, 4th point, I believe, when you are learning, you are taking any spoken English course, the most important point is that you practice a lot. You practice too much all the time, right? So all the time maybe you cannot do that, okay? People will start beating you if they don't understand what you're talking. So the point is that at least for an hour you have to talk in English. You have to speak English at least for an hour. And day 1, day 2 you have to talk for an hour. Day 3 that goes to 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes. So everybody, you have to do these things. These are very important 4 points. Everybody has to follow. We'll start today's lecture. Where is the pen? Right here. Okay, so I see Upasna, Anupriya, Swati, Shipra, IS aspirant, welcome, and Mohammed and Arpit, Suraj, Abhinav, everybody who's here with me, thank you very much for joining me live, guys. We're starting the class now. First of all, the motivational quote, what we believe to be the end is usually just the beginning. कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें दर्द होता है उसके लिए, बट यूजुअली वही आपके अच्छे टाइम का या वही आपके अच्छे एक्शंस की शुरुआत होता है. ठीक है, सो एक बार आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए भी कि यार मेरा कंफर्ट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, या मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं बोल सकती या बोल सकता, लेकिन वही शुरुआत होगी आपके अच्छे पर्सनालिटी की, आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आज जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन क्या होता है और व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ नाउन. इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है. एंड बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मुझे आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाना है गाइस. सिंपल शब्दों में प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, स्थानांतरित करता है. वेल, आई होप आई यूज्ड द राइट हिंदी वर्ड. Okay, Upasna, you can definitely speak like me, and everybody can speak like me, provided that you guys start speaking, okay? Speak in English. Let people laugh. Let people question. ठीक है, आज मैं कुछ sentences सिखाऊंगी, उनसे शुरुआत करेंगे आप इंग्लिश बोलने की. ठीक है, now वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर. Gary is a boy. Gary belongs to Punjab. Gary is preparing for CAT.
गैरी अटेंड्स इंग्लिश लेक्चर्स डेली, यहाँ पर स्पेस होगा, सॉरी. लेकिन one sentence you are repeating the same name 1 2 3 4 times. In one sentence you are repeating the name 4 times. Is that okay? Should we do that? No. If I'm going to talk to you in Hindi and I will say गैरी एक लड़का है, गैरी पंजाब में रहता है, गैरी कैट की तैयारी कर रहा है, गैरी इंग्लिश रोज पढ़ता है, तो आप कहेंगे गैरी गैरी क्यों बोल रही हो, वो बोल दो, समथिंग लाइक दैट, राइट. सिमिलरली ये बार बार जो रिपीटिशन होता है ना, ये जो बार बार रिपीट होता है यहाँ पर नाम, इसी को अवॉइड करने के लिए नाउन की जगह हम प्रोनाउन को लेकर के आते हैं. सबसे बेसिक चीज, बॉय के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो ही होता है, गर्ल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो शी होता है, एनिमल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट थिंग के लिए, किसी भी सामान या वस्तु के लिए भी इट यूज होता है. ठीक है. ही जो है वो सिंगुलर के लिए, अकेले लड़के के लिए. ठीक है. शी सिंगुलर लड़की के लिए, एक लड़की के लिए. इट एक जानवर के लिए, इट एक थिंग के लिए, वन थिंग. ठीक है. सिंगुलर क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगुलर इज वन. प्लूरल क्या होता है? प्लूरल इज टू. ओके. टू और मोर, आई एम सॉरी, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा. ठीक है भाई. विमेन के लिए भी शी यूज होता है. अच्छा, मैन के लिए ही, विमेन के लिए भी शी. ठीक है. सो बॉय और मैन ही, विमेन एंड गर्ल, वुमन एंड गर्ल के लिए शी. यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स. इन पिक्चर्स के थ्रू सिंपल समझेंगे. इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? आई. अपने आप को मैं खुद क्या बोलूँगी? आई. आई एम अ टीचर. जैसे इस पिक्चर में ये टीचर ही खड़ी हुई हैं, सो मैं कौन हूँ? आई. जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप खुद को क्या बोलेंगे? आई. लेकिन जब मैं आपके बारे में बात करूँगी या फिर आप मेरे बारे में बात करेंगे, when I will talk about you or you will talk about me, you will call me you, like I am calling you you. ठीक है. सो जैसे स्टेटमेंट होता है ना, लोग अक्सर बोलते हैं I like you, है ना. तो I मतलब कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, करता हूँ. सो you किसके लिए? तुम या तुम्हें के लिए यूज होता है. ठीक है. we, मैं और आप अगर साथ मिलकर के एक क्लास कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर वी बोलेंगे. ठीक है. यस, हम साथ में, हम के लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं, मैं के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं. शी कौन है? वो लड़की. ही कौन है? वो लड़का. इट कौन है? वो जानवर. ठीक है. अब ये सारे लोग साथ हो जाएं, लड़का लड़की टीचर स्टूडेंट जानवर, वो सब साथ में हो जाएंगे, तो आप उन्हें बोलेंगे दे ऑल आर चिलिंग. ठीक है जी. सचिन सिंह, ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लेक्चर्स हैं, यहाँ पर हम धीरे धीरे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा गाइस, कि आई का मतलब होता है मैं और माई का मतलब होता है मेरा, मेरे नहीं मेरा. तो 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट दैट. ओके. सो ये क्या हो सो दिस इज मेरा. ऑलराइट. सो आई मतलब मैं. कई बार लोग कहते हैं आई एम अ डॉक्टर की जगह माई डॉक्टर. नहीं, दैट इज वेरी एरोनियस, एब्सोल्युटली एरोनियस. कभी ऐसे बात नहीं करते हैं. एक और चीज़ यहीं पर सिखाऊंगी, जितने लोग मेरे साथ हैं ये बात सुने और फिर जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे. क्या होता है कि लोग अक्सर जब आपसे मिलते होंगे तो वो क्या कहते हैं आपसे? माई सेल्फ राकेश. ये गलत इंग्लिश है. कभी भी खुद को माई सेल्फ एक्स, माई सेल्फ वाई कह करके इंट्रोड्यूस ना करें. आप हमेशा दो तरह से खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सामने बड़े खड़े हुए हैं किसी के तो आप बोलेंगे आई एम एक्स. ठीक है. फोन पर बात कर रहे हैं तो बोलेंगे
दिस इज वाई। आप फोन पर भी आई एम बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी के सामने खड़े होकर के दिस इज ये ना बोलें, ठीक है। आई एम सिंपल है, लेकिन परफेक्ट वे ऑफ टेलिंग योर नेम है। याद रखेंगे, माई नेम इज दीपिका इज वेरी गुड, मेरा नाम दीपिका है। एज आई टोल्ड यू, माई का मतलब होता है मेरा, तो मेरा नाम दीपिका है। पर अगर आप कहते हैं आई एम दीपिका, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, मैं दीपिका हूं। ये एम, आई एम का इस्तेमाल होता है मैं हूं बताने के लिए। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉटर, आई एम अ फाइटर, बहुत सारी चीजों से। तो जब आप अभी सिखाते हैं आगे चीजें, दिस पर्सनैलिटी रिगार्डेड एज पीयूष विद अ लॉट ऑफ बर्ड्स। पीयूष, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। राम्या, वेरी गुड, you can say I am Rameshwari. On call you can say this is Rameshwari speaking, this is Rameshwari, or this is Rameshwari this side, ठीक है। यहाँ पर इतना सीख लिया है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जिसके ऊपर आपका आज पूरा सेशन होने वाला है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन क्लियर है। अच्छा, एक और बात बता दूं, आई टोल्ड यू गाइज, विल गो बैक अ लिटिल बिट, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था पिछले सेशन में कि 3 शब्दों का 3 वर्ड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है। व्हाट डिड आई टेल यू? उदिशा टीचेस इंग्लिश, ऑल राइट। नाउ यू हैव टू पे वेरी स्पेशल अटेंशन टू द फैक्ट कि ये जो आपका वर्ड है टीच, ये तो आप ऐसे लिखते हो ना, टीच, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है। वर्ब जिस तरह से आपकी डिक्शनरी में दिया होता है उसको आप कहते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कभी डिक्शनरी देखी है? मैक्सिमम लोगों ने देखी होती है, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, बट ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब भी आप इसे किसी के नाम के साथ यूज करते हैं तो इस शब्द के साथ आप ES लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर शब्दों के साथ आप सिर्फ S लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदिशा sings folk songs and I actually do, but ये देखिए sings हो गया ना, यहाँ पर singes थोड़ी कर देंगे, SINGES लिखना तो गलत हो जाएगा, राइट। सो जितने लोग मेरे साथ हैं सब याद रखेंगे कि जो 3 वर्डेड सेंटेंसेस होते हैं आपके, उनके साथ जब आप वर्ब, जो भी आपकी क्रिया होगी या फिर आपका एक्शन होगा, उसको आपने एस के साथ प्रेजेंट करना है। बहुत सारे लोगों ने लिखा था राम विजिट लखनऊ, राम विजिट लखनऊ नहीं, राम विजिट्स लखनऊ, राम लखनऊ जाता है, रिपीटेड एक्शन या फिर किसी की आदत के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत यहाँ पर। यस, वेरी गुड। मॉर्निंग सेशन नहीं हो पाया था। यस प्रशांत, थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन, अब आगे बढ़ के देखते हैं आपके लिए कुछ स्पेशल सेंटेंसेस। अच्छा, 1-2 सेंटेंसेस आप बना लें प्रोनाउन के साथ भी। ही सिंग्स, ठीक है। ही के साथ भी आपने वर्ब में एस जरूर लगाना है। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ही के साथ एक सेंटेंस बनाइए। ही प्लेज क्रिकेट, गुड इनफ, ठीक एग्जाम्पल है। अभी भी 3 शब्दों का वाक्य है, 3 वर्डेड सेंटेंस। ही, वर्ब के साथ एस लगाना मत भूलिएगा, जो भी एक्शन बताना उसमें एस जरूर लगाना। फिर देखो क्रिकेट, सिर्फ जो गेम वो खेलते हैं, ही प्लेज पबजी, ही प्लेज खो खो, ही प्लेज बास्केटबॉल, ही प्लेज स्नूकर, पूल, वॉट एवर, ही प्लेज समथिंग। सो यू विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट हियर एंड वर्ब के साथ एस लगा दें। तो एक सेंटेंस ही का बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस शी से, शी सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है। शी सिंग्स सॉन्ग्स लिखा है तो सॉन्ग्स में एस लग गया है यहाँ पर, यानी कि ज्यादा गाने गाती हैं, ठीक है। अब ये वर्ब के साथ एस लगा है क्योंकि शी के साथ यूज हुआ है, चलेगा। नेक्स्ट देखना, इट इरिटेट्स
me a lot. Let's say यहाँ पर it किसकी बात कर रहा है? It, okay, one second, I think ये छुप गया है कैमरा के पीछे. She eats fish, yes. अच्छा, जो लोग वैसे तो नॉन वेज नहीं खाते हैं पर फिश खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पेस्केटेरियन. ठीक है? यस, वेरी गुड. कुछ तो चल रहा है. हेलो मैम. अरे यार बहुत बेटा लंबे कमेंट्स मत लिखिए चैट में बिकॉज दे गोइंग अप वेरी क्विकली, सो आई एम नॉट एबल टू रीड इट. पंकज स्वरूप, please drop a mail to the support team or call the support team. I will not be able to do anything about it. SBI clerk means I took the batch and all the classes happened. Pescatarian, yes, very good. नहीं, bascatarian नहीं भाई, pescatarian. Pescatarian की spelling लिखिए. ठीक है, very good example. सचिन दुबे, शुद्ध. तो ये लैंग्वेज होती है ना, सबसे पहले तो गेट रिड ऑफ दिस. व्हाट इज दिस? आई एम ब्राह्मण एंड इट्स नॉट शुद्ध. इट्स नॉट शुद्ध. शुद्ध हमारी भाषा में एक बहुत ही अलग चीज होती है. इट्स रिलेटेड टू डेथ. यू आर शुद्ध ब्राह्मण. ठीक है? SHUDDH. सो आई एम. एंड व्हाट इज शुद्ध ब्राह्मण? लाइक आई एम अ प्योर ब्राह्मण एंड जस्ट से आई एम अ ब्राह्मण. That's enough. All right? Remember. Anand Prajapati, I'll tell you how to purchase the badge. Just visit adda247.com. Apply the code Y169. Yes, pescatarian. Now we've got the right spelling. Very good. ठीक है? No, Suraj, that's not correct. Bani's spelling is absolutely correct. Very good. Now, so everyone, please pay attention to small details. Do not use the text lingo. Message में जो चलता है ना, hey, what's up? That's not even what's up. It's what is up. क्या चल रहा है का स्लैंग फॉर्म. ठीक है? सो खैर आगे बढ़ते हैं. अब बारी है आपके बहुत ही अमेजिंग इंट्रोडक्शन की. बेसिक इंट्रोडक्शन. आप लोग कभी भी किसी से मिलेंगे ये फॉलो करेंगे. ठीक है? इट डजेंट मैटर कि आपकी क्या उम्र है. इट डजेंट मैटर कि आपको कितनी शर्म आ रही है. यू कैन यूज दिस. दिस इज एब्सोल्युटली लेट्स से दिस इज फुल प्रूफ. इसका कोई बुरा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा. ठीक है? पहला सेंटेंस देखते हैं. हाय, नाम लीजिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा. जिनसे आप मिलने जाते हैं उनका आप नाम लेते हैं तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है. मान लीजिए मैं मिलती हूँ बानी से. हाय बानी, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई सेल्फ करके इंट्रोडक्शन ना दें भाई, वो गलत होता है. दैट्स इनकरेक्ट इंग्लिश. यस, व्हाट्सअप मैम पूछ लिया है बच्चों ने. अच्छा, एग्जाम वॉरियर एक आध आंसर भी दे दो बेटा. इट इज नाइस टू मीट यू. वेरी गुड जॉब. हाय बानी, नाइस टू मीट यू. यस. हाय गौरव, नाइस टू मीट यू. हाय सुबोध, नाइस टू मीट यू. हाय देवकी, श्याम. वेरी सिंपल. एक्सीलेंट. मिमिक करना है, कॉपी करना है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कॉपी कर पाओगे वरना भूल जाओगे. सो हाय, मैंने एग्जाम्पल लिया था बानी का. नाइस टू मीट यू. हैंड शेक करते हुए आप बोल सकते हैं, या मान लीजिए लोग कंफर्टेबल नहीं है इन शेकिंग हैंड्स विद यू. व्हाट विल यू डू? हाय बानी, नाइस टू मीट यू. मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई. सिंपल कहना है. हाय बानी, नाइस टू मीट यू. हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. ठीक है? आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ के HR से भी मिलेंगे तो उनका नाम लेकर के ये आप बोल सकते हैं. ठीक है? मान लीजिए उन्होंने आपको पहचाना नहीं. और ये वाला जो है ना, ये मैंने एडिशनल डाल दिया. वैसे ये बच्चों का खेल होता है बट स्टिल मैंने लिख दिया है. अच्छा, मेरा नाम डैश है. अपना अपना नाम ले लो. सो दिस इज वेरी सिंपल. माई नेम इज लेट्स से सत्या, सुखविंदर, किरण, Asima, everybody. Very good job. Hi Neha, nice to meet you. Nice to meet you all. So everybody is like, hi Bani, nice to meet you. Now, मेरा नाम, my name is, मेरा नाम तो उदिशा है तो मेरा नाम उदिशा यहाँ लिख देते हैं है. ठीक है? इस तरह से सेंटेंस बन गया. देखो, इंट्रोडक्शन में कभी भी ये मत कहना कि आई एम किरण. इतना ओवरबेयरिंग साउंड करने की ज़रूरत नहीं. जब आप कहते हैं ना
आई एम संजय सिंघानिया, तो बस लगता है कि आमिर खान फ्रॉम गजनी आ गया है. यू डोंट हैव टू डू दैट. लाइक यू हैव टू बी अ लिटिल हम्बल. समझिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो जस्ट गो लाइक माई नेम इज व्हाटएवर. पहले नाम बता दो, फिर नेक्स्ट टाइम से आई एम को रख लेना. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, माई नेम इज. सो माई नेम इज उदिशा, मेरा एग्जाम्पल था, बाकी लोगों ने यहाँ बता दिया. अच्छा, अक्सर तो लोग कहते हैं कि उम्र नहीं पूछनी चाहिए, खासकर महिलाओं की. ये एक एटिकेट का हिस्सा है, ठीक है. कभी भी किसी महिला से उसकी उम्र और किसी पुरुष से उसकी सैलरी ना पूछें. ऐसे एटिकेट्स होते थे. वैसे कोई मुझसे उम्र पूछेगा तो मैं बता देती हूँ, एंड आई एम यूजुअली वेरी प्राउड ऑफ माई एज, बट एंड आई एम इक्वली प्राउड ऑफ द सैलरी. बट द पॉइंट इज, पूछना नहीं चाहिए. कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोग, ये उनकी पर्सनल जानकारी होती है, ठीक है. सो आई एम dash years old. So let's say I am 29 years old. ठीक है, उम्र बता दी. अब कभी भी कोई पूछता है, मान लीजिए आपकी शादी फिक्स हो रही है, या मान लीजिए कोई आपका हम उम्र मिल गया तो आपको मैच करवाना है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? माई नेम इज माइकल, आई एम 29 years old. जो अगर असली उम्र 23 है तो 23 बताना, मेरी उम्र मत बता देना, ठीक है. यस आनंद, वेरी गुड. उपासना, so I told you the age. Okay, my name is Anu, I'm 22 years old. शान अहमद, हंसने के अलावा भी कुछ कर लो. Monica, don't get me angry, you're a regular student, please focus on giving me answers. Yes, I'm 18 years old. Rahul, glad to know that. जी हाँ, my name is Bani, I'm 24. Very good, and be confident about it. Nice to meet you, Vaibhav, very good. Yes, I was the first person to tell you that, by the way. चलो, moving on. Next देखेंगे. मान लीजिए आप दुबई जाते हैं काम के लिए. हमारे देश से लोग दुबई बहुत जाते हैं, मैंने देखा है. और अमेरिका भी काफ़ी लोग जाते हैं. वो थोड़ा परेशानी होती है वीज़ा वगैरह की, इसलिए अवॉइड करते हैं. मैं डैश देश नहीं देश से हूँ. सो मैं डैश से हूँ. आई एम फ्रॉम, मान लीजिए यूर इन अमेरिका, लेट्स से यूर इन अमेरिका. वहाँ पर आपको किसी को बताना है कि आप कहाँ से हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माई नेम इज आंचल एंड आई एम 19 years old. वेरी नाइस यार, सबने उम्र बता दी. वेरी गुड. सी, दैट्स व्हाट आई सेड. Age is not mandatory, but there are circumstances, there are situations where people will ask your age. As I gave you an example, probably when your marriage is getting fixed, somebody might ask you, how old are you? Just go ahead and tell them the age. बढ़ा के बता दो. देखो, we have your favorite Santosh sir in this session with us. Thank you so much for joining us, sir. Glad to have you. I am from India. You can be from wherever. You can be from Nigeria, Sudan, Iran, but you can say I am from India. अपने देश का नाम बताने के लिए I am from India. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप इलाहाबाद गए हैं बट आपने बताना है कि मैं लखनऊ रहती हूँ, तो क्या बोलेंगे? मैं डैश में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ. क्या हो जाएगा यहाँ पर? I live in Lucknow. I live in Lucknow या I am from Lucknow, दोनों सही है, बट दोनों का मैंने आपको रिप्लेसमेंट बता दिया. I live in Lucknow, मैं रहती लखनऊ में हूँ. I am from. So from आपका जो रूट्स होते हैं, जहाँ से आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आप आए हैं, ओरिजिन, ठीक है. और I live in लखनऊ मतलब आप अभी रह कहाँ रहे हैं, वहाँ जो आपका अभी करंट स्पॉट है वो क्या है, ठीक है. वेरी गुड. अच्छा, ये जो मुझे यहाँ धक्का सबके कमेंट्स आ रहे हैं ना, दिस इज़ रियली गुड. बट अगर आज 1 घंटे सबने प्रैक्टिस नहीं की तो कल सेशन में मत आना, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा. सो बेटा, अगर 30 दिन में सीखना है तो जो कह रही हूँ उसको मानो. नहीं, अगर नहीं काम करती है मेरी ये ट्रिक तो बता देना, मैं बंद कर दूंगी, बैच बीच में बंद कर दूंगी, और यूट्यूब का सेशन भी. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई डोंट लाई, नो आई लाई, बट अबाउट दिस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है. मैं एक डैश हूँ, ठीक है. अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर. मैं एक टीचर हूँ, ठीक है. सो मैं एक क्या हूँ? मैं एक ही तो हो सकती. अच्छा, कई लोग कहते हैं आई एम टीचर, आई एम इंजीनियर. आप भरोसा नहीं करेंगे कि 30-32 साल के लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि कभी भी ऐसे नहीं बताते हैं आई एम इंजीनियर. Who cares if you are engineer? Engineer is a whole category. There are billions and trillions of engineers out there. You are one of them. So what will you say? I am
एन इंजीनियर, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है, वॉवल के पहले आप एन लगाएंगे, पर टी वॉवल नहीं है तो उसके पहले अ लगाएंगे. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउस वाइफ, वेरी गुड जॉब, लवली. ज्योति एंड आयुषी, प्रीतम, बानी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट. ठीक है. आई एम फ्रॉम मेरठ. आई हैव पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया यार, दिस इज लवली. मतलब नॉट बिकॉज थैंक यू सो मच संतोष सर, थैंक यू. नाउ चलिए, सो आई एम, और जो भी आपकी पोजीशन है, बैंकर है, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, या फिर हाउस वाइफ है, ब्लॉगर है, कुक है, शेफ है, पेट वॉकर है, कुछ भी, ठीक है. सो ऑलवेज बी. अच्छा, प्रशांत यादव, आई एम अ जॉबलेस इंजीनियर. ये तो कहना ठीक नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए. आई एम फ्रॉम हरियाणा, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड. स्नेहा, ओके, somebody. चलिए, मूविंग ऑन. ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला सेशन, मतलब ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंसेस. आगे क्या करना है, ठीक है. No, संदीप, that's not how it is. I am a gang leader, दिनेश चौधरी. डरावनी बातें कोई नहीं करेगा. मैं डैश से अंग्रेजी सीख रहा हूं. अब आप क्योंकि 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं ना, 2 दिन से सीख रहे हैं, दोस्तों को कैसे बताएंगे? ये बताने का मन नहीं कर रहा है किसी को कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं या रही हूं? कैसे बोलेंगे इस बात को? जल्दी से बताइए. वेरी गुड, लवली, कीप इट अप गाइस. यस. अरे भाई, कौन है ये? नेहा, क्या करना है यार बेटा, क्या करना है? बिल्कुल. बिगिनर की स्पेलिंग पर काम करिए सब लोग. बिगिन की स्पेलिंग ये होती है बच्चों, BEGIN. तो बिगिनर क्या हो जाएगा? बिगिनर में सिर्फ डबल N आता है. बिगिनर, ये बिग ये नहीं लिखेंगे, बिगिन होता है, बिगिन. ये इसमें ई आता है, इस चीज पर ध्यान दें. शब्दों को तोड़ करके उनकी स्पेलिंग याद करें, ठीक है. चलिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश. अच्छा, मैंने बोला है मैं डैश वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा हूं, या मैं डैश दिनों से अंग्रेजी, या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, रही हूं. इस बात को इंग्लिश में बोलिए. I have been learning. प्रशांत यादव, excellent. And अनुज मिश्रा, very good, excellent, very good. चलिए आइए देखते हैं. I have, ये जो ऐसे करके लिखते हो, ये छोटा फॉर्म है इन 2 शब्दों का. So I have been learning English for 2 days. आपके केस में 2 days. बेटा सेंटेंस को अभी स्क्रीनशॉट करो या तो नोटबुक में लिख लो. I have been learning English for 2 days. मैं 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, रही हूं. ठीक है. ऑलराइट. अब यहां पर देखेंगे कि अगर डेज की जगह आपके पास मंथ्स हो, सो आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, फॉर द पास्ट 2 months. बीते 2 महीनों से मैं सीख रहा हूं. एंड मैं ईयर्स की बात करूं, आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2009. तो फिर बीते समय की बात करोगे तो फिर सिंस लगा देना, बस इतना. ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, अभी के लिए इतना सीखो. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days. मैं 2 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूं. वेरी गुड. एज इट इज, मैंने बोला है इंग्लिश सीखने का पहला तरीका स्टूडेंट्स मिमिक करें उस चीज को, बिल्कुल एज इट इज, प्रोनाउंसिएशन के साथ, टोन के साथ उस वाक्य को कॉपी करें. कॉपी द सेंटेंस एज इट इज and there is no shame in it. You are not cheating, you are mimicking. So I have been learning, have been learning. Have been आप तब लगाते हो जब आप कोई काम करते जा रहे हो. So I have been learning English for 2 days. Excellent. Next, मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीख रहा हूं. मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीख रहा हूं. देवांश, उसमें लास्ट हटा दीजिए आप. फिर
सिंस लगाया है तो लास्ट हटा दें. प्रशांत सिंह, आई थिंक the difference between YouTube and paid is going to be a little more dedicated approach because I have to look at the comments also here. I have to keep asking you guys to share, although आप लोगों ने share नहीं किया है अब तक. जी हाँ बिल्कुल. Listen to Aanchal, everybody like and share. अच्छा, I have been learning English for 2 months. Very good. Veer Pratap, excellent. I am learning English online. Very good job. इसी लाइन पर अब हम बहुत सारे सेंटेंस सीखेंगे. देखिए, मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीख रहा हूँ. ठीक, क्या हो जाएगा? हूँ भी है ना और मैं भी है, तो सबसे पहले तो आई एम लगा दो. ठीक, अब क्योंकि सीख रहा हूँ, चल रहा है काम अभी भी, सो आई एम लर्निंग इंग्लिश. अच्छा, ये लिखा हुआ है तो पूरा फिर से क्यों लिखना है? Okay, so I am learning English online. Similarly, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. आइंदा से जब भी आपको कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस जगह पर आकर के कोई भी सेंटेंस खड़ा हो, आप ऐसे करेंगे, इस तरह से उसको इंग्लिश में बनाएंगे. कैसे? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, I am studying. पढ़ाई को इंग्लिश में सिर्फ studying बोलते हैं. पढ़ाई, studying, सीखना, learning, दोनों चीजें. ठीक है, मैं गिटार सीख रही हूँ. ठीक है, अब फिर यहां पर सीख रही हूं तो कैसे हो जाएगा? मैं गिटार सीख रही हूं, I am learning guitar. ठीक है, समझ आ गया है स्ट्रक्चर? ये देखो, मैं हूं सबसे पहले, फिर जो काम कर रहे हो वो आएगा, और जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो वो उसके बाद आ जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. आई एम स्टडीइंग, आई एम roaming around, I am watching YouTube session, I am eating food, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, I am talking over the phone, I am talking over a call, I am over a call, etc. I'm on a call, not over a call. ठीक है? Yes, I am learning guitar. Very good guys, keep it up, excellent. But again, reminder है कि ये sentences session के बाद भी use करने हैं. Everybody, remember, okay? I am writing an essay. Very good. Excellent. Tarun, very good. Neha, Satyajit, Deepmala, excellent. चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है. मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसलिए कृपया धीरे बोलें. ये सबसे पहले बोलना सीखो. मुझे भी अक्सर बोलोगे क्योंकि मेरी तो स्पीड बहुत तेज़ है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट आपको ये करना चाहिए. सो मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसलिए कृपया धीरे बोलें. ठीक है, अब सबसे पहले जो नोटिस करना वो ये शब्द, ये जो अभी भी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टिल. ठीक, अब सीख रहा हूं तो सीधे सीधे लर्निंग, लर्निंग उठा लो यहां से. ठीक है गाइस, मैं अभी भी क्या हो गया? स्टिल, और मैं और हूं. आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, इसलिए. सो कृपया, प्लीज स्पीक स्लोली. ठीक है, स्लो नहीं, स्लोली, ये हो जाएगा. निरंजन दास, स्टॉप वॉचिंग लास्ट ईयर IPL मैचेस. अब प्रेजेंट ईयर में नहीं हो रहा है तो लास्ट ईयर का देख के आप लोग टाइम वेस्ट करो. आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, सो प्लीज स्पीक स्लोली. Everybody, this should be your favorite sentence for the next full week. इतना बोलें कि fluent हो जाएं इसमें. ठीक है, I am still learning English, so please speak slowly. ये आपको बोलना है. Very good. Khizar Ahmed, Shalini, Amar I think is there, Santosh Kushwaha, and thank you Jaswinder, thank you so much. Anuj, very good. Surya, Yashi Sharma, very good. Still I am learning कर दिया. Sandesh Roy, giving you the proper structure. Please notice that I am still learning.
उल्टा लिखोगे स्टिल आई एम लर्निंग, मीनिंग बदल जाएगा। क्यों करना है? इसलिए कहते हैं कि पहली टेक्निक टू लर्न इंग्लिश इज मिमिक, सीखें, कॉपी करें, दैट इज ऑल। थैंक यू अनंत, थैंक यू सो मच। स्टिल लर्निंग इंग्लिश, तो प्लीज देखो, प्लीज को अगर आज के बाद किसी ने PLZ लिखा, कमेंट 2 घंटे बाद कर देना, पर ये टेक्स्ट लिंगो छोड़ दो। और नॉर्मली मैसेज में भी ना एजुकेटेड हो तो ये सब मत लिखा करो, कॉल मी और PLZ, और थैंक्स की जगह तो कुछ THX लिख देते हैं। अरे मतलब क्या हो गया भाई, यू गाइज आर एजुकेटेड पीपल, यू नो ऑल 26 अल्फाबेट्स, तो ये जो थैंक्स की जगह THX लिखते हो और ये 2-3 अल्फाबेट छोड़ के जो टाइम बचाते हो उसमें क्या करते हो? प्रीवियस ईयर के IPL मैच देखते हो? डोंट डू ऑल दैट, दैट्स नॉट फाइन। इससे आदत खराब होती है और आदमी का ना वही पूरा प्रोसेस हो जाता है, अब उसी तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, आई गेट एंग्री वेरी क्विकली, आई हैव नोटिस्ड। एनीवे, मूविंग ऑन। अच्छा, एक इसकी हिंदी एग्जैक्टली नहीं लिखी है मैंने। वन ऑफ माई हॉबीज इज, अपनी आदत का जरूर बता देना लोगों को। जैसे मैं बोलूंगी वन ऑफ माई हॉबीज इज टू गेट एंग्री ओवर एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर नाराज होना। ठीक, सो वन ऑफ माई हैबीज नहीं बेटा, हॉबीज इज सिंगिंग। मेरी क्या हॉबी है? गेटिंग एंग्री। हॉबी का क्या मतलब होता है? शौक, पसंद है मुझे ये चीज़। सो वन ऑफ माई हॉबीज इज कुकिंग, वन ऑफ माई हॉबीज इज प्लेइंग गिटार, वन ऑफ माई हॉबीज इज टीचिंग। कई लोग शौकिया तौर पर भी पढ़ाते हैं। सो वन ऑफ माई हॉबीज इज टॉकिंग, शौकिया तौर पर बात कर लेते हैं वरना चुप रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सारी चीज़ें आपने करनी है, सारे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू उपासना। अच्छा, बिस्वाल साहब जी, प्रशांत यादव कुछ आप कह रहे थे, देख नहीं पाई मैं बेटा। वेरी गुड, नंदिता सैनी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 sentences which are going to be a part of your introduction. Okay guys, तुम क्या करते हो? देखो, every time somebody comes and says hi, how are you, या hi, how do you do, उसके बाद हम कहते हैं very fine, thank you। यहाँ पर हम conversation को murder कर देते हैं, we kill the conversation। What if आपको actually उससे बात करने का मन है? मान लीजिए आपके बॉस आते हैं, सीनियर लेवल, आपसे आके कहते हैं हाय हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू, बात तो वहीं खत्म हो गई। बट बॉस अगर बात कर रहा है तो उससे बात कर लेनी चाहिए, वहीं से प्रमोशन हो जाता है कई बार लोगों का। ठीक है, सो क्या करना होता है? कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। नए हैं किसी, मतलब ये तो बॉस का एग्जाम्पल था, बॉस से मत पूछ लेना कि आप क्या करते हैं, इट विल बी वेरी फनी। ठीक है, बॉस से पूछेंगे तो इट विल बी वेरी फनी। ठीक है, वॉट आर यू डूइंग, अरे बाप रे, नो दैट्स क्या कर रहे हो। फोन पे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो तुम क्या करते हो रोजमर्रा में, नौकरी पेशा, व्हाट्स योर जॉब, प्रोफेशन। ठीक है, हेलो, सो व्हाट डू यू डू। मान लीजिए किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या किसी ऑफिस में आप इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ आपको कोई और भी मिलता है, बातें चलती हैं, तो कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाओगे भाई? इंट्रोडक्शन के बाद अगला सवाल अपनी तरफ से पूछना, सो व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं। मान लीजिए आप जाते हैं किसी से मिलने जाते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं सो व्हाट डू यू डू। सामने वाला बोलेगा आई एम इंजीनियर, तो बोलिएगा आई एम इंजीनियर गलत है, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक है, वेरी गुड एवरीबडी, एक्सीलेंट जॉब। सारे सेंटेंसेस कमेंट में लिखने की जगह जर्नल में लिख लो, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस करनी है रोज़, और मैं कह रही हूँ रोज़ प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लास्ट सेंटेंस आपका इंट्रोडक्शन वाला जो है, मुझे आपके लेट्स से जूते अच्छे लग गए, या लेट्स से नेकलेस अच्छा लग गया, या शर्ट अच्छा लग गया, कुछ भी, क्योंकि यार किसी को ना तारीफ कर दो तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। तो तुम लोग कहते हो कि मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं, तो मैडम 10 बातें और बोल जाती हैं। सो that is what happens when you give compliment to somebody, the person gets happy, becomes a little more comfortable. So when you want to make somebody comfortable, when you want to make somebody feel liked
and admired, compliment them, say that you have a beautiful smile. ठीक है, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है, इस बात को कैसे कहोगे? ये मत पूछ लेना आपको कहाँ मिला, स्माइल कहाँ मिली, नहीं होता है कुछ। खैर ठीक है जी हाँ, डेली होता है क्लास, लेकिन डेली इस क्लास का टाइम सुबह 8:30 बजे है। आज मेरे घर में लाइट चली गई थी, जो कि कभी नहीं जाती, पर आज चली गई थी। सो सुबह 8:30 बजे आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। अभी सेशन है तो कहीं जाइए मत। मुझे आपके शूज़ पसंद आए हैं, लेट्स से व्हाट विल यू से? आई लव योर शूज़, नेकलेस, शर्ट. When you want to really compliment somebody, just say I love your shoes, or you can just go a little subtle. इतना एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? आई लाइक योर शूज़, मुझे आपके जूते अच्छे लगे। मतलब कुछ लोग लाइक पे भी रुक जाते हैं, लव के क्या मतलब? आई लाइक योर शूज़ इज इम्पॉर्टेंट, आई मीन दिस इज गुड इनफ, राइट? सो आई लाइक योर शूज़, सिंपल। अब अगर लड़कियों का क्या होता है, उनको वो चाहिए होता है, इफ दे लाइक समथिंग दे वॉन्ट इट। सो वेयर डिड यू गेट इट? वो कहाँ मिला आपको? ये शूज़ कहाँ से लिए आपने? सो वेयर डिड यू गेट इट, वेयर डिड यू गेट देम? ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए। यस अनुप्रिया, वेरी गुड। बानी सेज आई लाइक योर हेयर, यू लाइक दिस हेयर? नो। दीपाली, वेरी गुड। ओके प्रशांत, वेरी गुड। अनु, तपस्विनी, एकता शर्मा, ओके गुड गुड गुड। आई लाइक योर, आई लाइक यू नहीं, योर लिखा है यहाँ पर। आप किसी के और सामान की, यार आई लाइक यू यानी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक योर स्टाइल, तो मैं तुम्हारी स्टाइल को पसंद करती हूँ। प्लीज़ दोनों चीज़ों में फ़र्क बनाएं। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक योर शूज़, मैं आपके शूज़ को पसंद करती हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड, मज़ा आ रहा है तो मज़े से सीखेंगे, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ एवरीबडी, थैंक यू कृतिका, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउ it is very important that you guys have to go ahead and practice every day. Very small sentences. If you like the way I talk, just talk like me, right? Move your hands a lot, make a lot of faces, smile a lot, giggle a lot, be confident while you're speaking. It will all sound very natural. People will actually feel that this person is learning English. So today, go to your mom and tell her, I have been learning English for 2 days. 2 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आपकी मम्मी भी खुश हो जाएंगी कि चलो जी कुछ सच में सीख लिया है ना? सो यूज़ ऑल दीज 11 सेंटेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, डेली कुछ एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना जब मैं डेली एक्टिविटीज़ की बात करूँगी, सो अगेन इफ़ यू डोंट गेट टू टॉक टू समवन, टॉक टू योरसेल्फ, खुद को बता देना, लेकिन ये डेली एक्टिविटीज़ को ज़रा इंग्लिश में बोलना। टू वेक अप, सुबह उठते हैं, जगते हैं आप, सो टू वेक अप यानी कि जागना। सो इसको हिंदी में हम सुबह उठे, आई वोक अप इन द मॉर्निंग। अब ये देखो, वेक अप ऐसे डिक्शनरी में लिखते हैं, लेकिन जब आप बोलोगे कि ये हो चुका है, ये काम पुराना हो गया, तो इसको कैसे बोलोगे? वोक बोलोगे। वेक जब अभी की बात, जैसे किसी को जगाने जाओगे, वेक अप, उसको उस मोमेंट में बोलोगे वेक अप, यानी कि उठो, अभी उठो। और अगर बोलोगे कि ये 2 घंटे पहले उठे, तो ही वोक अप 2 hours ago, 2 घंटे पहले। ठीक है, गेट अप इज उठ जाना, जगह से उठ जाना। वेक अप इज आँख खोल के जगना। ठीक है, फ़र्क समझें। अच्छा, वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है, जो लोग कहते हैं कि आई गेट अप एंड आई वेक। गेट अप इज लाइक ठीक है, ओके, बट वेक अप इज द अप्रोप्रिएट फ्रेज। मूविंग ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। टू वॉश माई फेस, अपनी शक्ल को धुलना। फेस, सुबह उठ के ब्रश करके फेस तो धुलते हैं ना सब लोग। सो अपना चेहरा धोना, आई हैव टू वॉश माई फेस, वॉश माई फेस, वॉश्ड माई फेस। पुराना हो जाएगा यानी कि पास्ट का काम हो जाएगा, तो वॉश्ड कर देना, आई वॉश्ड माई फेस। ठीक है, अच्छा, somebody is telling me I must try singing। क्यों, टीचिंग में अच्छा नहीं लग रहा है भाई? हैं, टीचिंग ही कर लेने दीजिए। और सेशन को शेयर करिए, लास्ट के 10 मिनट्स हैं, प्लीज शेयर द सेशन। आई वेक अप एट 6 o'clock डेली, वेरी गुड। कोई रोज का काम है, PDF यहीं मिलेगा, अंकित कुमार झा। कोई रोज का काम है, रेगुलरली कर रहे हो, तो इसी फॉर्म में यूज करना, वोक मत करना, उसको पुराना पास्ट फॉर्म मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी। टू टेक अ बाथ, नहाना, स्नान करना, विच इज लाइक प्रॉपर हिंदी स्नान एंड नहाना अगेन।
colloquial. अब स्नान करना, to take a bath, take a shower, दोनों चीज़ें सही होती हैं. ज़्यादा स्टाइलिश साउंड करना है तो टेक अ शावर बोलते हैं लोग आजकल. ऐसे यूजिंग शावर स्ट्रेट वेस्टेज ऑफ वाटर. थैंक यू. व्हाई डू पीपल लाइक द वॉइस हियर? नोबडी इज सिंगिंग. आई वोक अप एट 5 AM टुडे. आज मैं सुबह 5 बजे उठा था. आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी क्योंकि मुझे 8:30 बजे क्लास लेनी थी पर लाइट चली गई थी. खैर, सो आई वोक अप एट 5 AM सुबह. अब सुबह तो चली गई, पास्ट का काम है, तो वेक को क्या कर दिया? वोक कर दिया. मैंने मुंह 2 घंटे पहले धुला था, सो वॉश्ड कर दिया. आई वॉश्ड माई फेस 2 hours ago. ठीक है. टू टेक अ बाथ. अब मैं 2 घंटे पहले नहीं, 2 घंटे पहले नहीं, 7-8 घंटे पहले नहाई थी. सो आई टुक अ बाथ. टुक, ये सारा कुछ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जा रहा है. कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ये भी सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर somebody has written I took a bath day before yesterday. Please maintain very high personal hygiene everybody. ये 2 दिन पहले नहाने वाली हरकतें ठीक नहीं है. ठीक है. I take a bath at 7 AM daily. अगर आप रोज वो काम कर रहे हो तो as it is लिख दो. I wash my face daily. कोई काम रोज कर रहे हो तो बेटा जी ऐसे ही लिख देना. ठीक है. चलो, ये 3 रोजमर्रा के काम हो गए हैं. अगला देखते हैं यहाँ. टू हैव ब्रेकफास्ट, सबका फेवरेट थिंग, नाश्ता करना, खाना खाना. सो टू हैव ब्रेकफास्ट. ठीक है, इसको याद रखेंगे. चलिए. अच्छा, रवि राव, यू लाइक माई वॉइस. आई हैव रेड दैट कॉमेंट, but I will really like it if you learn to speak English also, which I think you know already, but I'm teaching, so I think you should pay attention here. All right, let's move on. नाश्ता करना, so to have breakfast. have का past क्या होता है? had. ये मत लिख देना I breakfasted. I breakfasted कुछ नहीं होता है. I had breakfast in the morning. सुबह किया था. नाश्ता सिर्फ सुबह होता है. शाम का जो नाश्ता नहीं, शाम का नाश्ता जो होता है आप लोगों का, वैसे तो उसको आप स्नैक भी कह सकते हैं, लेकिन डिनर और लंच के बाद का जो आपका मील होता है उसको सपर बोलते हैं. ठीक है. वेरी गुड. शान अहमद हेट्स टू टेक बाथ. बहुत बढ़िया, यहीं से आया है कोरोना. खैर, चलिए. टू स्टडी, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़े हैं तो मैंने सोचा ये भी एक रूटीन में डाल दें. पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. हमें और अच्छा इंग्लिश सिखाऊंगी, लेकिन आप लोग को डेली सुबह मेरे साथ सुबह 8:30 बजे जुड़ना होगा इस लेक्चर के लिए. ये जो आज 5 बजे हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द नो इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन हुआ है. ठीक है. हो, निखिल इज टेलिंग मी मैम आपका भी स और श खराब है. मेरा स और श, ज और ज, फ और फ सब परफेक्ट है. मैं बहुत काम करती हूँ प्रोनाउंसिएशन पे. ठीक है. टुक इट ऑलमोस्ट एज अ. अनिल सिंह ने मुझे खड़ूस बोला है. ठीक है, तो सुबह 8:30 बजे होता है. कोई नहीं, मैं हूँ खड़ूस. आई डोंट माइंड इट. चलिए. ठीक. टू स्टडी, पढ़ना. स्टडीड पास्ट हो जाएगा. विल बी स्टडीइंग फ्यूचर हो जाएगा. मत जाओ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. अब लास्ट चीज फॉर द सेशन, सब लोग एक बात सुनिए मेरी. हम लोग की ना आदत क्या होती है कि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके पहले वेरी लगा देते हैं. जैसे कि हमें बोलना होता है कि बहुत खुश हैं तो बोलेंगे वेरी हैप्पी. वहीं पर सुनने वाला, हाँ ठीक है, एवरेज स्पीकर है, उसका वो जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो सकता है उस टाइम पे, वो ख़त्म हो जाता है. तो ये जो वेरी शब्द है ना, इसको अपनी वोकैबुलरी से ज़रा हटाना शुरू करें धीरे धीरे. जब आप हैप्पी हैं, बहुत अच्छी बात, आप खुश हैं. जब आप बहुत खुश हैं तो वेरी हैप्पी कहना गलत नहीं है, पर ये बेसिक है. ये मतलब कॉमन लोग बोलते हैं ऐसे. कॉमन लोग के जैसे नहीं बोलना है, थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोलना है, थोड़ा स्पेशल बोलना है. ऐसे बोलना है कि सामने वाला सुने. ठीक है. सो हैप्पी, फिर एक्सटैटिक, बहुत खुश, अति आनंदमयी, मत समथिंग. ठीक है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. आगे देखेंगे. Perfect. Okay, so when I start teaching, I think I get into the flow and then I do a few things. Please, commendable. अच्छा, perfect के साथ तो very perfect लगाना बिल्कुल भी, मतलब perfect के साथ very आपको नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. ठीक है जी, very good.
Thank you everybody. I know that this is a nice class and you have to be here. 8:30 AM होती है रोज ये क्लास, अभी इस टाइम पर हो रही है. आज सुबह नहीं हो पाई थी, तो रोज सुबह आइएगा, ठीक है. लवली. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट. कभी मत बोलना वेरी परफेक्ट, कहना बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत होता है. परफेक्ट का जब बेहतर फॉर्म बताना चाहते हो, कोई चीज एकदम परफेक्ट से परफेक्ट है, परफेक्ट से ऊपर वाले लेवल पे है, तो क्या बोलोगे? फ्लॉलेस बोलोगे, ठीक है. यहाँ एंग्री, एक तो एंग्री होता है, दूसरा होता है वेरी एंग्री. पर वेरी एंग्री मत बोलना. किसी को एकदम खौफ ज़दा करना है ना, डरा देना है कि भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आई एम फ्यूरियस. आई एम फ्यूरियस मतलब फ्यूरी, फ्यूरियस, समझ रहे हैं आप? यहाँ से बंदे को समझ आता है आपके खौफ का, आपके गुस्से के लेवल का. तो फ्यूरियस बोलें. वेरी एंग्री क्या होता है? कुछ नहीं होता है. फ्यूरियस बोलेंगे आपसे, ठीक है. एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, जैसे मैं क्लास लेते लेते हो जाती हूँ, तो एक होता है एक्साइटेड, उत्साहित, ठीक है. अभी वेरी एक्साइटेड करके इसको लेवल डाउन नहीं करो, बोलो थ्रिल्ड. जब खुशी के साथ थोड़ा सा एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट उसमें जुड़ जाता है ना, तो आप बोलते हैं थ्रिल्ड. जैसे मान लीजिए कि एकदम से एक तरफ आपको पता चल जाता है कि आपकी जॉब लग गई है, दूसरी तरफ आपको पता चलता है कि जॉब मिलते ही आपको प्रमोशन दे दिया है. दैट इज व्हेन यू गेट थ्रिल्ड, कि मतलब एक एक्साइटमेंट और एक खुशी, ठीक है. यस. सैड, ये मैं नहीं चाहती कि इमोशन किसी की भी लाइफ में आए. सैड होता है, फिर वेरी सैड होता है, तो वेरी सैड नहीं बोलेंगे, मिजरेबल बोल देंगे. बिल्कुल जब इंसान बिल्कुल सॉरो, ग्रीफ, इन सब से बिल्कुल घिरा होता है ना, दबा होता है इसके नीचे, तो बोलते हैं मिजरेबल. जब किसी का रोना नहीं रुकता है, उसको बोलते हैं मिजरेबल होना, ठीक है. सो इसका प्रोनाउंसिएशन एक्सटैटिक, ठीक है, एक्सटैटिक. और फ्लॉलेस तो समझ ही चुके होंगे. फ्लॉ, लॉ बोल लेते हैं ना आप लोग, लीगल लॉ. सो फ्लॉ, उसमें एफ लगा दें, फ्लॉलेस. अब फ्यूरियस, फ्यूरियस, सीरियस वाला यस ले लेना, फ्यूरी का फ्यूरी ले लेना, तो फ्यूरियस. थ्रिल्ड, मिजरेबल, मिजरेबल मत बोलना प्लीज, मिजरेबल. स और र के बीच में गैप नहीं देना है, मिजरेबल, ठीक है. जैसे मिश्रा होता है वैसे मिजरा हो जाएगा, तो मिजरेबल, मिजरेबल, आई एम सॉरी, ठीक है. ऑसम. यहाँ पर आई थिंक हम लोग अब कर देंगे सेशन को वाइंड अप. और जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आई गारंटी दैट यू आर गोइंग टू लव द पेड बैच, बिकॉज देयर आई नॉट बी स्कैर्ड कि यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो जाएगा. बट यहाँ पर गाइज आप लोगों को अगर हमारा पेड बैच चेकआउट करना है, तो दो छोटे छोटे काम करने हैं. एक कि adda247.com को विजिट करना है, फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस पर क्लिक करना है, ठीक है. ऑनलाइन लाइव क्लासेस पर आपने क्लिक किया और उसके बाद आपको ये पिक्चर दिखेगी. ये कोर्स अभी प्राइस आपको इसका दिखेगा 699, जो कि शायद आपको महंगा लगे. इसमें आप कोड लगाएंगे Y169. Y169 का कोड लगाते ही आपको 30% का डिस्काउंट, यानी कि ये कोर्स आपको सिर्फ 489 रुपीज़ में मिल जाएगा. एवरीवन, पेड बैच ज़रूर चेकआउट करिए गाइज. आई गारंटी 30 डेज के अंदर अंदर आप लोग सीखेंगे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, ठीक है. बिकॉज मैंने खुद 30 दिनों में इंग्लिश सीखी है, और मैं किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं गई थी, सिर्फ एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया था. दैट्स ऑल. तो यहाँ पर पहली चीज़, मेरी जो फ्री यूट्यूब क्लासेस होती हैं वो कहाँ होती हैं? यूट्यूब की फ्री क्लासेस सुबह 8:30 बजे होती हैं. आज शाम को हुई है, पर डेली सुबह 8:30 बजे मेरे साथ जुड़िएगा. साथ ही साथ गाइज आप लोगों को पेड बैच अगर चेकआउट करना है तो adda247.com को विजिट करना पड़ेगा. वहाँ ये फ़ोटो ढूंढ करके कोड लगाना होगा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि वरना फिर आप 699 का खरीदोगे और बोलोगे बहुत एक्सपेंसिव है. तो कोड लगाएं और बैच आपको कितने का मिलेगा? अंडर 500, ठीक है. आजकल 500 रुपीज़ की ग्रॉसरी आ जाती है, यू डोंट इवन गेट टू नो, ठीक है. चलिए, खैर यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ सेशन करके. जितने लोग अभी तक देख रहे हैं, विनम्र निवेदन है, प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. 1 घंटे इंग्लिश में ही बात करेंगे, गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, यहाँ से जो लर्न किया है वो बोलेंगे, पर बोलेंगे ज़रूर. अपना जो होमवर्क है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें.
साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में एक प्रैक्टिस शीट अटैच की जाएगी, उस पर क्लिक करके होमवर्क ज़रूर कर लें, तैयारी करते रहिए। 30 दिन के अंदर आपको सीखना है बहुत ही अच्छे से और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना। ध्यान रखिएगा अपना। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।